Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। We welcome you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ यीशु मसीह के नाम से हम हर एक का स्वागत to करते the Heart हैं of Christ live service. हार्ट ऑफ क्राइस्ट कलीसिया में। Even this day, the Lord has made and planned good things for our lives. आज भी परमेश्वर ने महान और अच्छे कार्य हमारे जीवन के लिए रखा है। Hallelujah. हालेलुया। We turn our Bibles to Psalm chapter 66. हम भजन संगीता की किताब को खोलेंगे। Psalm chapter 66. We read from verse 1 to 4. Make a joyful shout to God, all the earth. Sing out the honor of His name. Make His praise glorious. Say to God, how awesome are your works. Through the greatness of your power, your enemies shall submit themselves to you. All the earth shall worship you and sing praises to you. They shall sing praises to your name. हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। परमेश्वर से कहो, तेरे काम क्या ही भयानक है। तेरे महा सामर्थ्य के कारण तेरे शत्रु तेरे चापलूसी करेंगे। सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे, वे तेरे नाम का भजन गाएंगे। Hallelujah. It says, say to God, how awesome are your works. हम यहाँ पढ़ते हैं कि परमेश्वर से कहो कि आपका कार्य इतना अद्भुत है, Through the भयानक है। greatness of your powers, your enemies shall submit themselves to you. और तेरी महासामर्थ के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। Hallelujah. परमेश्वर चाहता है, God wants us to have a joyful shout and rejoice knowing God is awesome. और परमेश्वर चाहता है कि हम खुशी से आनंद उठाए और आवाज उठाए कि हम ये जाने कि परमेश्वर महान है। Hallelujah. Hallelujah. Verse 5. Come and see the works of God. He is awesome in His doing toward the sons of men. आओ परमेश्वर के कामों को देखो, वह अपने कार्यों के कारण मनुष्यों को भयोग्य देख पड़ता है। Hallelujah. Come and Hallelujah. see the works of God. आओ परमेश्वर के कामों को Even देखो। today, God can perform mighty works in your life. आज भी परमेश्वर महान कार्य कर सकते Even हैं। today, as we sing praises to God and we honor God, God will be glorified. आज भी जैसे आवाज उठा के स्तुति करते परमेश्वर नाम ऊंचा होता Let's है। say to God, how awesome you are, Lord. हम कहेंगे प्रभु आप कितने महान Your हैं। works are so awesome. आपका कार्य इतने महान Your है power is so great. और आपका सामर्थ जो महान है। Hallelujah. As you Hallelujah. join along, we request you to share this link with your family and friends. जैसे हम शुरुआत कर रहे हैं, कृपया ये लिंक जो है अपने इर्द गिर्द मित्रों और परिवारों के साथ जरूर शेयर So that they करें also can join along, worship the Lord together, hear His word and be encouraged today. ताकि वो लोग भी आशीष पाए, आराधना करें और वचन में भी वो भी समझें। Hallelujah. Hallelujah. Let's pray. We thank you, Lord Jesus, for this wonderful time you've given us. धन्यवाद यीशु, सुंदर समय जो आपने दिया प्रभु। It's by your plan and purpose that, Lord, we have gathered into your holy presence. और प्रभु आपके जो योजना के अनुसार हम सब आपकी उपस्थिति में आए हैं। This is the day that you have made, and we will be joyful, we'll rejoice and be glad in it. प्रभु आज के दिन आपने बनाया है, इसलिए हम इसमें आनंदित रहेंगे। Your word says, say to God how awesome your works are. आपके वचन में लिखा है, परमेश्वर से कहो कि आपका कार्य इतना महान है। Even today we say, Lord, how awesome are your works. और आज भी हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपके कार्य महान है। Maybe we are not able to see, but we pray you'll open our eyes to see the greatness that's in your power. आज हम देख नहीं पा रहे होंगे, लेकिन प्रभु हमारी आंखों को खोल दीजिए ताकि हम आपकी महानता और आपके कार्यों को देखें। We pray that the whole earth will bow down to you and know that you alone are the great I हम am. प्रार्थना करते हैं कि पूरी दुनिया जो है झुककर जाने कि आप ही महान मैं हूँ। Your word says all the earth shall praise and sing praises to your holy name. वचन में लिखा है पूरी दुनिया आपका भजन गाएंगे। And today you've given us the grace to worship you, and we want to thank you, और Father. आपने हमें अनुग्रह दिया आराधना करने, उसके लिए कोटि धन्यवाद। We pray for all those who have, Lord Father, joined along with us online. We pray a special grace and mercy will descend upon each and every आज one. जो कोई ऑनलाइन में हमारे साथ मौजूद है, जो आने वाले हैं, हम मांगते हैं एक अलग अनुग्रह इनके जीवन में आए। Fill us with your joy. आपकी खुशी से हमें भर Fill us दीजिए। with your holy presence. आपके पवित्र जो उपस्थिति है उससे हमें भरे। Holy Spirit God, take control of this whole time. ये पूरे समय हम आपके हाथ में देता है। Speak to us through your word. आपके वचन द्वारा हमसे बात Help us to worship you in truth and in spirit. और आत्मा और सच्चाई से आराधना करने में मदद कीजिए। We submit this time wholly into your hands. You take total control. आपके हाथों में पूरे समय हम देते हैं।
In the name of Jesus, we humbly pray. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, Amen. आमेन आमेन। Amen. Hallelujah. ताली बजा के परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे. Praise the Lord. Let's prepare ourselves as we sing praises and worship God. हम ताली बजाते हुए आवाज उठाते परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे. आइए ताली बजा के हमारे परमेश्वर के समान कोई नहीं है। आमेन। इसलिए जो भी हम कहते हैं वो खोल के कबूल करके हम गाएंगे।
का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा अच्छा गढ़ है। समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में से मार्ग को निकाला। हालेलुया। ये गाना हम बहुत बार गाते हैं, लेकिन हम विश्वास नहीं करते कि हमारे जो जंगल है, हमारी जो कठिनाइयां है, परेशानियां, उसके अंदर से परमेश्वर की मार्ग निकालेगा। हालेलुया। परमेश्वर क्यों निकालेगा? क्योंकि वही खुद मार्ग है। अपने बाजू वाले को देखकर कहिए, मेरा परमेश्वर मार्ग है, वो सत्य जीवन है। किसी ने भी इस दुनिया में नहीं कहा कि मैं ही मार्ग हूँ। अगर एक परमेश्वर कहते कि मैं मार्ग हूँ, मतलब समझ जाइए हर परेशानियों में एक रास्ता आने वाला है। हालेलुया। एक नया रास्ता आएगा। अचानक से जब हम एक जगह पे जाते हैं, अगर हमें एक नया रास्ता दिखाई देता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये हाईवे हमें जल्दी से पहुंचाता है। ये जगह से जाएंगे तो ऐसा अच्छा है, वो वाला रास्ता अच्छा नहीं है। परमेश्वर जब एक रास्ता बनाता है, और अगर परमेश्वर खुद बनाता है, तो उस रास्ते में कोई परेशानियां नहीं आएगा। हालेलुया। और उस रास्ते में शैतान को कोई काम नहीं है। क्या विश्वास करते हैं? आज विश्वास के साथ रखें कि प्रभु आप मेरे लिए एक रास्ता बना रहे हैं। आमीन। साथ मिलकर समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में से मार्ग को निकाला। समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में से मार्ग को निकाला। जो वादा को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। आमीन। जो वादा को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा अच्छा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा अच्छा गढ़ है। लाजर को जिसने जलाया, सातान को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जलाया, सातान को जिसने बचाया। जिसके लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। आमीन। जिसके लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा अच्छा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा अच्छा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा अच्छा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा अच्छा गढ़ है। हालेलुया। जोरदार ताली बजा के परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। याकूब का परमेश्वर हमारा संग है, हमारा ऊंचा गढ़ है। वही इब्राहिम, याकूब, ईसाक का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। द गॉड ऑफ इब्राहिम, आइजक एंड जेकब इज आवर गॉड इवन टुडे। जैसे हमने गाया, परमेश्वर के बिना हमारी जिंदगी सुनसान है, इट्स वेस्ट, व्यर्थ हो जाता है, वेन हो जाता है। इफ गॉड इज नॉट पार्ट ऑफ आवर लाइफ और गॉड इज नॉट आवर लाइफ, हमारा पूरा जीवन व्यर्थ हो जाता है। हालेलुया। दुनिया में बहुत सारे लोग जी रहे हैं, पर यीशु मसीह जो जीवन है, उनके बिना उनका जीवन भी व्यर्थ है, मरा सा जीवन है, सूखा सा जीवन है। पर when Jesus is our life, जब यीशु मसीह हमारे जीवन है, हम सच में जीते हैं। Why? Because Jesus is the way, the truth and the life. Hallelujah. परमेश्वर यीशु खुद मार्ग, सत्य और जीवन है। यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट करके कहा मार्था को, मैं ही जीवन और पुनरुत्थान हूँ। Jesus himself said, I am the resurrection and the life. आमीन। तो यीशु मसीह अगर हमारे जीवन में नहीं है, तो मरा हुआ जीवन ही दिखेगा। लोग जिंदा चल रहे हैं, पर एक्चुअली आत्मिक रीति से वो मरे हैं।
पर आज भी यीशु चाहते हैं कि हमारे जीवन में यीशु मसीह रहे, सो दैट सच में हम जिए। हालेलुया। सत्य के साथ जो जो परमेश्वर को खोजते हैं वो सच में प्रभु यीशु को पाते हैं। वचन कहता है कि जब मूसा को परमेश्वर ने चुना था कि इजराइल के लोगों को मिस्र देश से बाहर लेकर आने के लिए, when God chose Moses to take the people of Israel out of Egypt, परमेश्वर ने वादा किया कि मैं इन लोगों को उस वादा किया हुआ देश में लेकर जाऊंगा, कनान देश में, प्रॉमिस लैंड में लेकर जाऊंगा। पर जब वो लोग आ रहे थे, वचन कहता है कि बीच में लाल समंदर आई। The Red Sea was in front of them. आगे लाल समंदर, पीछे फिरौन की सेना। और जब लोग वहां पहुंच गए, वो सोच रहे कि ऐसे प्रभु ने हमें यहाँ लेकर आए, तुम हमें छोड़ दिया है। They're thinking कि प्रभु ने हमें बाहर लेकर आए। When they left the land of Egypt, वो लोग सब धन दौलत के साथ निकले। प्रभु ने ऐसा कृपा दिखाया, ऐसा दया दिखाया कि ये लोग गुलामी में रहकर भी, दो they were in slavery, उनके सब इर्द गिर्द के नेबर्स, जो इजिप्शियन, जो मिस्र देश के नेबर्स थे, सब लोग ने अपना धन दौलत इनको दिया। और उसी खुशी के साथ, सब भरपूरता के साथ ये लोग मिस्र देश से निकल पड़े। पर निकलने के बाद जैसे वो चल पड़े, हम देखते हैं कि आगे लाल समंदर, पीछे फिरौन की सेना। वहां से लोग मर्मर करने लगे, ग्रम्बल करने लगे, कुड़कुड़ाने लगे और कहने लगे कि ये परमेश्वर हमें यहाँ लेकर आया है हमें मराने के लिए। मूसा हमें यहाँ लेकर आया मराने के लिए। और वचन कहता है कि मूसा परमेश्वर की ओर अपना आवाज को उठाता है। Moses calls upon God, क्योंकि ये शुरुआत करने वाला परमेश्वर है, तो अंत भी परमेश्वर ही कर सकता है। मूसा ने परमेश्वर को उस सुनसान जगह में, विल्डरनेस में परमेश्वर को पुकारा नहीं। उस पहाड़ में मूसा ने परमेश्वर को पुकारा नहीं। परमेश्वर ने उस बर्निंग बुश के द्वारा, उस जलता हुआ उस बुश जो बोलते हैं, उसके द्वारा परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, मोसेस मोसेस करके। मूसा ने परमेश्वर को नहीं बुलाया। तो परमेश्वर ने अगर ये शुरुआत किया, परमेश्वर खुद उनको चलाएंगे। हालेलुया। लाल समंदर के वहां खड़े होकर मूसा परमेश्वर से पुकार कर कहता है, हमें क्या करना है? परमेश्वर कहता है, तुम्हारे हाथ में जो लाठी है उसको उठाओ, लिफ्ट अप दैट रॉड व्हिच इज इन योर हैंड। और जब उसने ऊंचा उठाया, वचन कहता है कि लाल समंदर दो भाग हो गया। हालेलुया। लोग डर गए कि क्या होने वाला है, पर मूसा ने सही समय में परमेश्वर को पुकारा, क्योंकि परमेश्वर खुद उत्तर देने वाला परमेश्वर है। और वचन में जब हम पढ़ते हैं कि मूसा ने हाथ उठाया, लाठी को उठाया, परमेश्वर ने दो भाग किया, हम सोचते हैं कि तुरंत उनके सामने ऐसा हुआ। नहीं, वचन कहता है कि जैसे मूसा ने ये किया, पूरा रात भर हवा चली, पूरा रात भर हवा चली। The people camped there, they waited. उस पूरे रात को लोग ठहरे थे। फिरौन की सेना तो आ रही है, पर परमेश्वर ने क्या किया, वो समय के लिए वहां अग्नि को भेजकर उनको वहां रुका दिया। This is our God. Hallelujah. मिरेकल है, आगे मिरेकल हो रहा है, हवा चल रही है, लाल समंदर दो भाग हो रहा है, पर एक रात बिताना है। हम विश्वास के साथ अगर बिताएंगे, वेट करेंगे कि प्रभु मैं विश्वास करता मेरा लाल समंदर दो भाग होगा, पर पीछे भी प्रभु बंदोबस्त करते हैं कि अग्नि के साथ हमारे शत्रु को रुका देते हैं। दिस इज आवर गॉड। ये हमारा महान परमेश्वर है। ही वर्क्स आउट एवरीथिंग परफेक्टली। अच्छी रीति से सब कुछ सिद्ध करने वाला परमेश्वर है। अगर आगे भी हमें चलाता है तो पीछे भी हमारी ख्याल रखता है। वो हमें कभी हाथ नहीं छोड़ता। मिडवे, हालेलुया, अर्धा रास्ते में कभी भी अपने बच्चों को वो हाथ नहीं छोड़ता है। जो वो शुरुआत करते हैं वही अंत करते हैं। He is the one who begins, he is the one who ends everything. हालेलुया। परमेश्वर कहता है, वचन कहता है कि उस दिन भी प्रभु के सब लोग उस लाल समंदर के बीच में सूखे जमीन पे चले। आज भी प्रभु हमारे लिए भी मार्ग को तैयार करेगा। जैसे सिस्टर ने कहा, परमेश्वर खुद मार्ग है, वो ही हमारे लिए मार्ग को तैयार करेगा। हमारे शत्रु को उसी मार्ग पे जहां हम अच्छे से चलते हैं, उसी मार्ग में परमेश्वर कभी भी शत्रु को हमारे तरफ नहीं चला सकता। हालेलुया। God cannot lead your enemies in the same path where He is taking you through. वचन कहता है कि पानी ने जब फिरौन की सेना आई, उन सबको डुबा दिया।
हालेलुया। आज भी हमारा परमेश्वर जिंदा है, आज भी हमारा परमेश्वर कार्य करेगा, आज भी परमेश्वर लाल समुद्र को दो भाग करने वाला परमेश्वर है। हम विश्वास के साथ परमेश्वर को खोजेंगे, विश्वास के साथ उनकी स्तुति आराधना करेंगे। जैसे वचन कहता है, हाउ ग्रेट इज हिज वर्क, हाउ ऑसम इज हिज वर्क। हम कहेंगे प्रभु कितना महान आपका कार्य है। अगर उस दिन आप लाल समुद्र को दो भाग करते हैं, मेरे जीवन भी आज कार्य कीजिए प्रभु। Even today, Lord Father, perform a new work in my life, Father. अगर कुछ बाधाएं हैं, हालेलुया, हम प्रार्थना करेंगे। अगर प्रभु कुछ बाधाएं हैं हमारे जीवन में, आज यीशु मसीह के नाम से वो बाधा खोल जाए। We pray all those barriers will be broken in the name of Jesus. All those hindrances will be broken in the name of Jesus. Father, take away all that fear. अगर डर है प्रभु, भय है कि क्या होने वाला है, कल की चिंता है, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, हर एक चिंता को दूर कर दीजिए। हमारे आगे कुछ भी जो प्रभु बाधाएं हैं वो तोड़ डाले यीशु मसीह के नाम से, बंधनों को तोड़ डाले यीशु मसीह के नाम से। We believe in you, we trust in you, we worship you, Lord. How great and awesome are your works. The sons of men give you glory, Daddy. हम भी आपकी महिमा करते हैं, हम भी आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महान कार्य की जय जयकार करते हैं प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आइए आवाज उठाकर धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस फॉर योर ग्रेटनेस, थैंक यू फादर फॉर योर गुडनेस एंड योर मर्सी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। Let's say, Lord, you are my world, you are my God. I lay down my life for you. You are my Lord, the one I love, and no one can ever take your place. Let's all open our mouths and say, Lord, no one can ever take your place. No one can ever take your place, Lord, because you are my world and you are my God. I don't trust in a man. मैं एक मनुष्य के ऊपर निर्भर नहीं होता, लेकिन मैं जीवित परमेश्वर के ऊपर निर्भर हूँ। आप ही मेरी दुनिया हो, आप ही मेरे परमेश्वर हो, कोई आपका स्थान नहीं ले सकता। Father, I adore you more than anything my heart could live for. I just want you. And Jesus, my beloved Savior, everything I have, I owe to you. I owe it all
your children, we worship you along with all the angels and saints, Lord Father. Let's all lift up our hands towards the heavens. अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे. Let's all lift our hands towards the heavens and say, angels, come and adore you, and we, your children, we worship you. And angels come and adore you, and we, your children, worship you. And angels come, and angels come and adore you, and we, your children, worship you. You are my world, you are my God, and I lay down my life for you. You are my Lord, the one I love. No one could ever take your place. You are my world, you are my God, and I lay down my life for you. You are my Lord, the one I love. No one could ever take your place. No one can ever take your place, Lord. आपका स्थान कोई नहीं ले सकता है. आपका स्थान कोई नहीं ले सकता है, क्योंकि आप महान हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं. And we want to thank you, Lord, for who you are in our life. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for being our stronghold in times of trouble. Thank you, Lord, for being our refuge and fortress. We thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. आप जहाँ कहीं भी हैं, मुंह खोल कर कहिए धन्यवाद यीशु. Thank you, Lord, that you are our world. आप हमारी दुनिया है प्रभु. आप हमारा परमेश्वर है. आपके बिना हमारा जीवन सूखा है, सुनसान है, मरा है प्रभु. आज भी हमारी ओर आपके जीवन को फूकिए प्रभु पिता. Breathe life into us even this day, Father. अगर जो कोई भी प्रभु मरा हुआ परिस्थिति में है, आज भी हमारे ऊपर जीवन को घोषित कर दीजिए. Speak life over us in the name of Jesus. Yes, Father, let us live, Daddy, in the name of Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. We magnify your holy name, Lord. We adore you for who you are. You are the great I am. आप, मैं जो हूँ सो हूँ परमेश्वर है. आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है. आपकी महान कार्य जो हम पढ़ते हैं प्रभु, कल, आज और युगायुग आप वही हैं. आप कभी बदलते नहीं है प्रभु पिता. आपका कार्य कभी बदलता नहीं है. हालेलुया, धन्यवाद यीशु. Perform a new work in our life, Lord. Do a mighty work in our life, Lord. Do something new in our lives, Father. नया मार्ग को खोल दीजिए यीशु मसीह के नाम से. हम मांगते प्रभु, आपके लोग प्रभु पिता जो जो आपको खोजते हैं, आपका वचन वादा करता कि वो कभी शर्मिंदा नहीं होंगे. हम मांगते हैं कि प्रभु आपकी कृपा और दया आपके लोगों के ऊपर बनी रहे यीशु मसीह के नाम से. Hallelujah. Let your grace, Lord Father, be sufficient for us.
Your word says the righteous will have many troubles, but the Lord will deliver him from them all. धर्मी जन को बहुत सारे समस्या आ सकती है, पर परमेश्वर उनको हर एक समस्या से छुड़ाएगा। आज भी हम मांगते प्रभु, जो भी परिस्थिति में से प्रभु गुजर रहे हैं, संकट में है, तकलीफ में है, आज भी प्रभु हमारी ओर आपकी आंखों को फेर लीजिए। एक नई कृपा और नई दृष्टि हमारी ओर प्रभु दीजिए। Look upon us with kindness and mercy, Father. Look upon your people with grace and mercy, Lord. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद यीशु। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद यीशु। We praise your holy name, Lord, for how awesome are your works towards the sons of men. शक्तिमान है। धन्यवाद उठा के सार्थक है। तुम है महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। तू है महान सर्वशक्तिमान, तू परमेश्वर का धन्यवाद हम करेंगे। अल्फा और ओमेगा आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आदि और अंत आपका कोटि धन्यवाद। आप जो है हमारे जीवन में उसका धन्यवाद करते हैं प्रभु। सर्वशक्तिमान विजयदाता आप महान है, आपके समान कोई नहीं है प्रभु। There is no one
you, Lord. There's no one else greater than you, Lord. We thank you for who you are in our life, Lord Jesus. And even today, Lord, we pray that you may do something new in our lives, Lord. Do something marvelous in our life, Lord Father. एक नया कार्य कीजिए हमारे जीवन में। हर एक पत्थर दिल मांस का दिल बन जाए यीशु के नाम से। हम मांगते हैं हर एक का दिल अपनाए हुए दिल बने प्रभु, जो आपके वचन को ऐसे ही अपनाए जैसे वो है। We praise you, Lord Father. एक महान कार्य अभी इसी वक्त हर एक के जीवनों में हो जाए यीशु के नाम से। जो कोई ये लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं, जो देखने वाले हैं, हर एक के परिवार में आज इनके द्वारा एक नया शांति आए, एक नया बदलाव आए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। प्रभु आपने वचन में लिखा है, मैं जो हूँ सो हूँ। इतने बड़े परमेश्वर है, आज भी हम आपकी आराधना कर रहे हैं। ये हमारी सौभाग्यता है, जानते हुए अपने आप को नम्र करते हुए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम कुछ नहीं, आप सब कुछ है। हम कुछ नहीं, आप सब कुछ है। आपका नाम को ऊंचा कीजिए, आप योग्य है। We thank you, Lord Father. ये पूरे समय हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आपके वचन में लिखा है, अंतिम दिनों में आप ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो आपके करीब है, जो आत्मा और सच्चाई से आपको ढूंढते हैं, जो वचन अनुसार चलते हैं। और प्रभु जैसे हम वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, हम मांगते हैं वचन द्वारा हमसे बात कीजिए। वचन जो है वैसे ही अपनाने के लिए हमें मदद कीजिए प्रभु। Help us to receive the raw word as it is, Lord Father. Help us to believe in every word that has come from your throne, Lord Jesus. विश्वास हमारे बढ़ाइए प्रभु। पवित्र आत्मा पूरे समय हम आपके हाथों में देते हैं, हमसे बात कीजिए। शैतान के हर बंधन को, हर योजनाओं को, हर दलाल को जो आपको हमसे दूर करता है, यीशु के नाम से हम उसको नष्ट करते हैं, बाहर निकालते हैं। आप ही मार्ग है प्रभु, हमारे जीवन कि अंत तक आप ही हमारे साथ रहेंगे, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। सारी स्तुति, महिमा, प्रशंसा, गौरव हम केवल यीशु नाम को देते हैं। यीशु मसीह की पवित्र अति पवित्र नाम से सुन और कबूल कर हमारे स्वर्गीय जीवित पिता। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। छोटा ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद करेंगे। आमीन। हमारा परमेश्वर जीवित है, हमारे संग मौजूद है। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आप सबका स्वागत वापस यीशु मसीह के नाम से करना चाहते हैं। जैसे आप हमारे साथ जुड़े हैं, हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। आमीन। और अगर ये आपने ये लिंक को शेयर नहीं किया अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ,
ये लिंक को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी परमेश्वर के वचन को सुनकर उनके अंदर भी विश्वास बढ़े और परमेश्वर उनके जीवन में आज भी एक नया कार्य करे। हालेलुया। अभी भी पासवान आकर हमारे बीच में परमेश्वर के वचन को बांटेंगे। हम अपने आप को तैयार करेंगे, हम बाइबल को उठाकर एक सिंसियर हार्ट के साथ, सिंसियर रीति के साथ हम बैठेंगे परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। और जब प्रभु बात करेगा श्योरली हमारे जीवन में महान कार्य होगा। आमीन। प्रभु हम सबको आशीष करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मैं आशीष देता हूँ। We bless you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. इसलिए एक हफ्ते से आप सबको हमको संभाला प्रभु ने, इसलिए प्रभु को और एक बार हम धन्यवाद And देंगे। we praise the Lord and thank Him that He has been taking care of us this whole week. प्रभु महान है। Our God is great. अभी जो हम स्तुति आराधना जो किया है, परमेश्वर का प्रशंसा, परमेश्वर का अभिषेक हम सबको पर आ रहा And है। as we worship in God, we praise God. The Lord's presence is in our midst. प्रभु को और एक बार धन्यवाद देंगे। Let's give the Lord glory once again. हम परमेश्वर के बारे में ज्यादा जानकारी सबको जरूरत है। And we need to know about our Lord, and it's very necessary. वो जन यही समझते परमेश्वर यीशु प्रेम करने वाला परमेश्वर है, People know and recognize Jesus as a God who loves, पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। and they know and are aware that He's a God who forgives sins, तो मतलब जो कभी वो दंड नहीं देने वाला परमेश्वर है। and they have the thought of grace that He will never punish. ये जो संसार में सब जन ये सोच रहा है, ये सब तो सुनाता है, ये सही बात है। And we, of course, have heard this word and we believe in this word. आज परमेश्वर आपसे जो बात करना चाहते हैं, परमेश्वर क्यों वो दंड दे रहा है? And but our God, why does He punish? The Lord will minister to us this वो day. उसका दंड किस तरफ जो हो रहा है? And in what way does God bring about punishment? We must understand. अभी आपको ये भी समझना जरूरी है। आज का संदेश यही है, जो परमेश्वर प्रेम करता है, संभालता है, सब कुछ है, लेकिन वो किस तरफ उनका एंगर आ जाता है वो भी देखना जरूरी है। And we know that our God is a God who's very loving, He's kind, but He's also a God who gets angry. बहुत जन एकदम इजीली ले लेता है। And many people take God lightly. मेरा प्रियो, आज परमेश्वर आपके साथ जो बात करते हैं, आप थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको। And even today, my beloved, hear the word of God attentively. अगर आप ध्यान से सुनेंगे तब आपके जीवन में आशीष आने वाला And when है। you listen to the word of God attentively, surely you will receive a new blessing in your life. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। जिंदगी में जो हम जो जी रहा है, ये दुनिया पूरा गंदगी में पापों से भरा हुआ है। And this world and life that we are living in, we know that we are filled, the world is filled with filth all around. तो इसके बारे में यीशु मसीह जो बता रहा है, अपने योवान के द्वारा जो बात किया है, पहला योवाना 5वां अध्याय 19 वचन, 1 John chapter 5 verse 19. We know that we are of God, and the whole world lies under the sway of the wicked one. हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। क्या लिखा है? और हम एक जानते बार पढ़ें। हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में है। वो दुष्ट के वश में है। कौन है वो दुष्ट? And who is this wicked one that the Bible speaks about? अब देखिए, सब परमेश्वर का, सब जो हम सब परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर का आराधना करते हैं, लेकिन वो जो लिखा है, सब जन संसार पूरा दुष्ट का अंदर चला गया। We are people in this world who praise God, we worship God, we are of God, but the people of this world, the word of God says, they are in the sway of the wicked one. वो जो है शैतान। And we see the wicked one is Satan. इस शैतान को आप देख नहीं सकते हैं। You're not able to see him. आप सोचेंगे वो लंबा लंबा बाल रहेंगे, लंबा लंबा दांत रहेंगे, बड़ा बड़ा आंख रहेंगे, इस तरफ नहीं है। And you might imagine Satan to be like somebody who has big horns or big teeth or very scary. वो किसी किसी द्वारा उसको डराता है, अपने सबको डराता है वो। And
we imagine him to be somebody who is very who scares people. जो परमेश्वर से अपने को अलग करने के लिए, उनका राज्य को लेके जाने के लिए वो क्या कर रहा है, आदमी का मन को बदलता है। But he is the wicked one who actually strays away people's minds from God's kingdom and takes them towards his kingdom. इसीलिए वो जो हमें बहुत केयरफुल रहना जरूरी है। And therefore we need to be aware and इसमें attentive. क्या लिखा है, देखिए आज परमेश्वर का प्रेम का बिना आज परमेश्वर का हैंग क्यों आ रहा है, उसके बारे में आपको अच्छी तरह जाना जरूरी है, क्योंकि आज से अगर आप बदलेंगे तो आपके जीवन में आशीष पाएंगे। Why is God's love not abounding in your life, but why is His anger abounding? You need to know and you need to be aware. हम पुराना नियम में से पढ़ेंगे, पहले शमूएल 2:12 पढ़ेंगे। First Samuel chapter 2 verse 12. Now the sons of Eli were corrupt. They did not know the Lord. एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को न पहचाना। ये कैसा पॉसिबल है? अब बताइए, ये कैसा पॉसिबल है? एक याजक है, उनका बेटा मतलब कौन हो गया, कौन बन गया? लूस बन गया है। And we see that Eli had 2 sons and they were corrupt in the eyes of God and they did not know God. And how is this possible? आपका भी सोचना जरूरी है। आप विश्वासी है तो आपका बेटा बेटी किस तरह तो शैतान का गिर जाता है। And Eli was a priest and you also need to consider, if you are children of God, how can your children fall into the trap of ये जो Satan? लिखा है वो जो है परमेश्वर को नहीं जानते करके। But it clearly mentions they did not know the Lord. इसका मतलब ये नहीं है सब जन सुनाता है सिखाता है, लेकिन परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। There are people who teach the word, know the word, but knowing God is very important. आपको परमेश्वर को क्या पसंद है क्या ना पसंद है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी And है। it's very necessary, you need to be aware of what God desires, likes and He dislikes. आप ये देख लीजिए, ये जो एली का जो 2 पुत्र है, जो ओपनीस और फिनिहास करके, जो दोनों पर उनका याजक थे और परमेश्वर का काम भी करते थे। And we see that the sons of Eli, Hophni and Phinehas, both were priests of God and they were doing the ministry in the temple of God. आप देख लीजिए उसमें क्या लिखा है, परमेश्वर को नहीं जानते थे। But clearly it says they did not know God. और हम और एक वचन भी देख लेंगे सेम चैप्टर में, समझ लीजिए, जो शामूएल के बारे में भी वो भी बता देंगे। शामूएल भी परमेश्वर का वचन सुनाता सब कुछ है, लेकिन शामूएल भी परमेश्वर का वचन आने के तब तक वो भी परमेश्वर को नहीं जानता है। And we see that Samuel was also growing up in the same temple, but till he did not receive the word of God, he also did not know God. वो छोटा बच्चा नहीं है, छोटा बच्चे से बड़े हो गए, एली का साथ में, एली के सामने काम मतलब परमेश्वर की सेवा करता था। And we see that from his childhood he was serving in the temple with Eli and he was growing in the temple. पहले शामूएल 3:7 पढ़ेंगे। Now Samuel did not yet know the Lord, nor was the word of the Lord yet revealed to him. उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और न यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। अब देख लीजिए कैसा पॉसिबल है, वो जो छोटी बच्चे से लेके वो एली का उधर सामने खड़ा है, परमेश्वर का मंदिर में काम करता था। And we see that Samuel was growing up in front of Eli's eyes. He was growing up in the temple. And how is it possible that he did not know God? एली के जो 2 पुत्र है वो भी उधर ही जन्म हुआ था, उसके साथ में परमेश्वर का काम करता था। And we see that even Eli's 2 sons, they also were growing up in the temple, growing and they were working in the ministry. दोनों जन मतलब शमूएल और वो अपनी फिनिहास का भी कहानी लिखी है, दोनों जन उधर ही जन्म हो गया, उधर ही बड़ा हो गया। And we see that be it Hophni or Phinehas or be it Samuel, all of them were growing up in the same temple. What is the difference? वो क्या करता था? वो अपनी फिनिहास ने पाप किया है, शमूएल ने पाप नहीं किया है। But the difference is that Hophni and Phinehas fell into sin, but Samuel was not in the line of sin. आप समझ लीजिए, परमेश्वर के वचन को नहीं जानते थे, इसी कारण वो लोग जीरा था, लेकिन
शामुएल पाप नहीं किया, लेकिन ये जो इन दोनों ने पाप किया है। And we see that they did not know God, but the word of God did not even come to them. But the difference is, Hophni and Phinehas lived a life of wickedness, but Samuel did not. आज जो संदेश यही है, जो व्यक्ति अनजाने में कोई गलती करता है, परमेश्वर से माफी मांग रहा है, परमेश्वर उनको क्षमा देता है। And when somebody falls into sin unknowingly, they also, when they repent, God forgives them. और कोई जानबूझ के पाप कर रहा है, कोई परमेश्वर का दास नहीं तो परमेश्वर का वचन के द्वारा आपको चुनौती आने के बाद अगर आप मन गिर गया तो आप बच गया है। And some people, they knowingly sin, and when the word of God comes also through the ministers of God, if you repent, turn away from your wickedness, surely God will forgive you. अगर जानबूझ के बार बार मतलब कुछ अपनी सामर्थ से, अपनी ताकत से परमेश्वर के खिलाफ काम करेंगे, पाप करेंगे, तो परमेश्वर क्या करता है? And if at all you knowingly continue in sin stubbornly, knowingly if you walk in that particular path, then what does the Lord do? We will read. तो आज ये देख लेंगे ये इनके जीवन में किस तरह जो काम किया था और परमेश्वर ने क्या किया है। And we look into their lives, that how they lived and what God did in their life. हम वो जो वही जो लिखा है, जो चैप्टर 2, 1 Samuel चैप्टर 2 वर्स 12 से कंटिन्यू करेंगे, 12 and 13। Now the sons of Eli were corrupt. They did not know the Lord. And the priest's custom with the people was that when any man offered a sacrifice, the priest's servant would come with a 3-pronged flesh hook in his hand while the meat was boiling. एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को न पहचाना। याजकों की रीति लोगों के साथ यह थी कि जब कोई मनुष्य मेल बलि चढ़ाता था, तब याजक का सेवक मांस पकाने के समय एक 3 नोक वाला कांटा हाथ में लिए हुए आकर उसे कढ़ाई या हंडे या तलसे के भीतर डालता था, और जितना मांस कांटे में लग जाता था उतना याजक आप ले लेता था। अब देख लीजिए किस तरह जो परमेश्वर के लिए जो बलि देने के लिए आ रहा है, उसी समय में क्या होता था, बात सुनिए। उसी समय में जो इंसान अगर पाप करेंगे तो उनको बलि, परमेश्वर को बलि देके अपने पापों को मुक्ति मिलता था। And we see that in the Old Testament, when people sinned against God, they would bring a sacrifice to the Lord for the forgiveness of sins. तो उसी समय में जो लोग लेके आ रहा है बलि चढ़ाने के लिए, लेकिन ये जो याजक का जो आदमी लोग क्या कर रहा था, वो जाके जो परमेश्वर की जो दिया हुआ है उसी में से अच्छे को ढूंढ के वो लेता था। And we see that, but when the people came to offer the sacrifice, the servants of the priests who were working there, they would go and choose the good pieces and they would pick it up. और जो लोगों को जो बलि चढ़ाने का है तो वो बोलते ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो बोलता हम जबरदस्ती तुम्हारे से निकालेंगे। And when the people complained against them and questioned them that why are you doing so, they said that we do it and we will do it by force. अब ये देख लीजिए किस तरह जो वो लोग जो गलत किया है, कंटिन्यू करेंगे। अब 16 तक पढ़ेंगे या 14 से लेके 16। Then he would thrust it into the pan or kettle or cauldron or pot, and the priest would take for himself all that the flesh hook brought up. So they did in Shiloh to all the Israelites who came there. Also, before they burned the fat, the priest's servant would come and say to the man who sacrificed, "Give meat for roasting to the priest, for he will not take boiled meat from you, but raw." And if the man said to him, "They should really burn the fat first, then you may take as much as your heart desires," he would then answer him, "No, but you must give it now, and if not, I will take it by force." Therefore, the sin of the young men was very great before the Lord, for men abhorred the offering of the Lord. और चर्बी जलाने से पहले भी याजक का सेवक आकर मेल बलि चढ़ाने वाले से कहता था, "भुनने के लिए याजक को मांस दे, वह तुझसे पका हुआ नहीं, कच्चा ही मांस लेगा।" और जब कोई उसे कहता, "निश्चय चर्बी अभी जलाई जाएगी, तब जितना तेरा जी चाहे उतना ले लेना," तब वह कहता था, "नहीं, अभी दे, नहीं तो मैं छीन लूंगा।" अब देख लीजिए मूसा का जो अपना कमांडमेंट है, मतलब जो परमेश्वर के किस तरफ जो बलि चढ़ाना करके। And we see that Moses has already laid the commandments for the people, that in what way they must offer the sacrifices. और उससे कारण क्या हो गया, बस 17 में जो लिखा है, Therefore the sin of the young men was very great before the Lord, for men abhorred the offering of the Lord.
इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। अब देख लीजिए, जो सबसे पहले जो वो दोनों व्यक्ति किस तरफ जो पाप किया है, परमेश्वर को जो देने की चीजों से वो अपने के लिए लिया है। And we see that these two young men, what they did was, they started taking things that belonged to God. और वो दोनों जन किस तरह जो पाप जो किया है, क्योंकि वो समझता है हम याजक का बेटा है, हम सब कुछ है करके वो गलत करता था। And they had that confidence that they are the priests, they are the sons of the high priest, and so they were doing their sin confidently. और उसी And boldly. और वो और क्या किस तरह जो पाप किया है, ये दो चीज पहले गलती किया, पाप किया क्या है, सबसे पहले परमेश्वर को जो बलि चढ़ाने की जो दिया है उसी से गलत किया है। And we see that they sinned by taking from the offering that was offered to the Lord. और जो ऑफरिंग जो लाया उसको नीच समझ के करता था। And they looked down, or they did not respect the sacrifice that was brought to और God. दूसरी गलती क्या क्या है, वर्ष 22 और 23। Now Eli was very old, and he heard everything his sons did to all Israel, and how they lay with the women who assembled at the door of the tabernacle of meeting. एली तो अति बूढ़ा हो गया था, और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इज़राइल से कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। तब उसने उनसे कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा सुना करता हूँ। जो मंदिर में आता जो सब स्त्रियों के साथ में गलत काम करता था। And we see that they were laying down with women who were serving at the tabernacle. आज बहुत जन परमेश्वर के नाम से गलत काम करते हैं। And there are a lot of people even this day who do wrong in the name of God. परमेश्वर के बारे में पूरे तरह से नहीं जानते, इसीलिए वो जानबूझ के करते हैं। And they do not know God, and therefore deliberately they anyhow sin. आज बहुत जन परमेश्वर क्षमा करने वाले परमेश्वर करके पाप करता है। And many people say that God is a God who forgives, and they deliberately sin. जो उनके पिताजी जो बता रहा है, तुम मैं सब जन सुना रहा है, तुम लोग इस तरफ जो पाप कर रहा है, जो प्रार्थना के जो आ रहा है वो सब स्त्री के साथ गलत कर रहा है, गलत संबंध कर रहा है, या ऐसा नहीं करना चाहिए करके वो पिता बता रहा है। And we see that the father is actually telling them and admonishing them, saying that don't do such things, that why do I hear your evil dealings with the people? क्योंकि ये नहीं जानते हैं, मतलब परमेश्वर प्रेम के परमेश्वर है, महान है, दयालु परमेश्वर, लेकिन वो अग्नि सम्मान बहुत दंड देने वाला परमेश्वर के एली के मालूम है। And Eli was aware that God is very loving and just, but he's a God of anger, and he also punishes. वो क्या बता रहा अपने बेटे को, 24 में लिखा है, No, my sons, for it is not a good report that I hear. You make the Lord's people transgress. If one man sins against another, God will judge him. But if a man sins against the Lord, who will intercede for him? Nevertheless, they did not heed the voice of their father, because the Lord desired to kill them. हे मेरे बेटो, ऐसा न करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वह अच्छा नहीं। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध कराते हो। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे, तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे, तो उसके लिए कौन विनती करेगा? तो भी उन्होंने अपने पिता की बात न मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। देख लो, वो जो तुम अपराध ना करो करके बार बार अपने पिता बता रहा है। And we see that the father admonished them, saying, do not do this, my sons. और बहुत जन क्या इस तरफ जो जबरदस्ती जानबूझ के पाप करते हैं। And there are a lot of people who deliberately sin against God. आज बहुत जन विश्वासी बन गए, कोई दूसरे के साथ गलत करते हैं। And we see that being believers also, they do wrongdoings with others. बहुत जन परमेश्वर का नाम लेके जाके पाप करते हैं, गलत करते हैं। And a lot of people take the name of God in vain, and they go and sin. लेकिन वो सबको आज परमेश्वर बता रहा है, तुम इस तरफ ना करो, रुकाओ। And even today the Lord is warning you all, no, don't do it. आज भले मेरे भाई मेरे बहन जो देखने वाले कोई भी हो, लेकिन परमेश्वर के सामने परमेश्वर जो कहता है, इस तरफ अगर तुम गलत काम करते हो परमेश्वर के नाम से, तो आज से रुक जाओ, बंद करो। All those who are watching us, whoever you may be, brothers and sisters, if at all in the name of God also you're doing all these things, you are involved in such sin, then get out of it and stop it even today. मैटर छोटी मैटर होंगे, बड़ी मैटर होंगे, उसका कारण है, लेकिन परमेश्वर को ना पसंद है
वो काम करना बंद करना पड़ेगा And whether आपको। it's small or big, if it is displeases the Lord, you stop it even today. अगर कोई जबरदस्ती काम करेंगे तो जो किस तरह जो बिनिगास और ओपनी जो कैसा काम किया है, अगर इस तरफ आप सुनने के बाद में अगर गलत करने तो आपको दंड आने वाला पक्का है। And surely those who deliberately sin, those who do not heed the word of God, do not heed the voice of God, if you continue in your sin, surely God will bring upon you a punishment. और ये जो बता रहा है उसका पिता बार बार बता रहा है इस तरह ना करना करके। And the father warns them again and again. तो परमेश्वर क्या किया, उनको खत्म करने की, मार डालने की वो विचार किया But the है। Lord desired and He already concluded that He's going to destroy and kill them. आप देख लीजिए जो एक जगह येली का नीचे जो दोनों बेटा है, दूसरे जगह में शामुएल। And we see that here we have two priests who are working under Eli, the sons of Eli, and the other we have Samuel. और जो ओपनी फिनिगस ने किस तरह जो कलीसिया में जो आता है, जो सबको खिलाफ काम कर रहा था, सबसे प्रेम से बात नहीं कर रहा था और परमेश्वर के खिलाफ काम कर रहा था। And we see that Hophni and Phinehas, the sons of Eli, they were sinning against God with the women there. They spoke rudely with the people and they did wrong in the temple of God. ये जो परमेश्वर यही चाहता है, परमेश्वर को तुमको प्रेम करना है, परमेश्वर का आज्ञा पालन करना है, और इस तरफ से जो तुम किस तरह परमेश्वर को जो प्रेम करते हैं, ऐसे दूसरे से भी प्रेम करना है। And God's commandment is love the Lord your God with all your heart, soul, mind and strength. And He also tells you to love your neighbor, love the others as yourself. Verse 26. And the child Samuel grew in stature and in favor both with the Lord and men. परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। मतलब समझ लो, जो परमेश्वर को और लोगों के ऊपर वो प्रिय काम कर रहा था। And we see that he was, God and man both were pleased with him. That is, he found favor in the eyes of God and men. वो जो क्या बता रहा है, तब परमेश्वर ने वो दूसरे परमेश्वर के दास के द्वारा एली को समझाता है। And we see that God sends another man of God to come and speak to Eli. आप देख लीजिए 27 से लेके 29 तक पढ़ेंगे। Then a man of God came to Eli and said to him, Thus says the Lord, Did I not clearly reveal myself to the house of your father when they were in Egypt in Pharaoh's house? Did I not choose him out of all the tribes of Israel to be my priest, to offer upon my altar, to burn incense, and to wear an ephod before me? And did I not give to the house of your father all the offerings of the children of Israel made by fire? Why do you kick at my sacrifice and my offering, which I have commanded in my dwelling place, and honor your sons more than me, to make yourselves fat with the best of all the offerings of Israel, my people? जो बता रहा है, देख लीजिए, इसमें वर्ष 29 में लास्ट में लिखा है, जो परमेश्वर लास्ट के बता रहा है, वो 29 पढ़ेंगे। इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि को जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रौंदते हो, और तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है? वो क्या बता रहा है? तो तुम्हारा अपने पुत्र पुत्र को को मुझसे अधिक मुझसे, परमेश्वर से अधिक आदर क्यों आदर करता है? And he says that, why are you honoring your sons more than me? मेरे प्रियो, अपने पिता होने दो, माता होने दो, बेटा होने दो, बेटी होने दो, सबसे पहले आपको आदर परमेश्वर को देना है। Be it your father, mother, brother, sister, children, honor God first. क्योंकि जो परमेश्वर सबसे महान है, Because He is the greatest of all. वो आपको बचाने के लिए अपने एक ही लौटे पुत्र की जो दिया है, वो जीवन दिया है हमें बचाने के लिए, अपने पापों से उठाने के लिए वो लहू पाके हमें उठा दिया And उन्होंने। we see that He gave His life for us. He gave His only Son for us on the cross. He shed His blood for us and He saved us and redeemed us from our तो sins. इसी कारण सबसे पहले हर चीजों से परमेश्वर को पहले स्थान दो। So therefore give priority and the first place to God alone. और कोई भी वो इंसान होने दो, आपको दोस्त होने दो, आपको कोई भी होने दो, मित्र होने दो, लेकिन आप सब ये सब सेकंड स्टेज है, पहले स्थान अपने परमेश्वर है। Be it your family, relatives and friends, they all take the second place in your life, but God needs the first place. तो उसने परमेश्वर उनको बता रहे, तुम क्यों इस तरफ कर रहे हैं एली से? And God is questioning Eli that why are you doing so? वो एली उनको बच्चों से बात भी कर रहा है, बेटा बेटी तुम लोग ऐसे तरह पाप नहीं करना करके। And Eli also actually warned his children and he admonished them saying that why are you doing these things? अब बताइए क्या हो गया?
क्यों हो गया? उनका पिता का बात क्यों नहीं माना था? वो याजक ही दोनों परमेश्वर के बारे में वो उनका पिता का थ्रू बात किया होंगे, सुनाए होंगे, सिखाए होंगे। परमेश्वर को ये पसंद है, ना पसंद है, फिर इस तरफ क्यों हो गया है? And why these sons have gone through such a life that they know, of course, their father would have taught them something about God. They are priests of God in the temple of God. But why were they living such a life? वो जिन यही समझता है, मेरा बेटा मेरा बेटी बड़ा होने दो, बाद में सब सुधरेंगे, समझाएंगे उनको। Many people assume that when my children grow bigger, I will teach them later on in life. और वो जन ये समझता है अभी नहीं, बाद में हम सुधारेंगे। And they think that later on we will correct them, later on we will teach them. पिछले दिन आई थिंक परमेश्वर ने आपसे जो बात किया है, जो आपको छोटे बच्चे से लेके आपको अपने बेटा बेटी को सही सलामत परमेश्वर के बारे में बताना जरूरी And है। God also has ministered to us saying that grow and teach your children from their childhood about the ways of God. अगर आप उसी समय में आपने नहीं किया तो बाद में कुछ भी नहीं कर सकता है। And later on it becomes very difficult for you to turn their ways towards God. अगर आपका बेटा बेटी बड़ा होने के बाद आप उसको दंड नहीं कर सकता है, Because after they grow up bigger, you cannot go and punish them. और उनको आप गालियां नहीं दे सकता You है, cannot be bad mouthing them. और उनको कुछ आप रुका नहीं जाए तो आप उसको उल्टा, आपके तरफ में उल्टा वो बात If you करेंगे। raise your hands, they will also raise their hands and they will back answer. और बहुत जगह में यही आप देखे होंगे, घर पे माता पिता को बेटा बेटी ने मारा करके। And we read a lot in the news is also speaking that a lot of children, they hit their parents, they beat their parents. वो जन अपने जावेद के लिए, पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए अपने माता पिता को भी मार डालता There है। are a lot of children who murder their own parents just for the property's sake. एक भाई दूसरे भाई को मार डालता है, One brother kills the other just for money. एक बहन दूसरे बहन से लूटता है। And one sister robs another sister. ये सब क्यों होता है? Why all this wickedness? परमेश्वर का भय नहीं है। Because they do not fear God. अगर कितना भी कोई विश्वासी होने दो, अविश्वासी होने दो, लेकिन परमेश्वर का भय होता है तो उनको थोड़ा डर लगेगा, इस तरफ हमें नहीं करना Be चाहिए। it believers or unbelievers, if you do not have the fear of God, you will live such a life. But if you fear God, you will stop from doing तो such things. वो इसीलिए छोटी उम्र से, छोटे बच्चे से आप परमेश्वर के बारे में सिखा लीजिए। Therefore, teach your children about the Lord from their young age. अगर आप परमेश्वर के बारे में छोटे बच्चे से आपका बेटा बेटी का आप सिखाने से वो अंतिम दिनों में, आने वाले दिनों में वो आशीष पाएगा। When from childhood itself you teach the children the way of God, when they grow old, surely they bring glory and grace from God. मेरा भाई मेरा बहन, अगर आप याद से सुनिएगा, अगर आप छोटी उम्र से परमेश्वर का वचन आप उनको देते रहते तो वो वचन उनके जीवन में कार्य करेंगे। When you give the word of God to your children, that word is the one that starts working and protecting your children. आपका बेटा बेटी वो भी उम्र से बढ़ते बढ़ते रहेंगे, The children also grow in their age, और जो वचन भी वो भी उनका अंदर से बढ़ते रहेंगे, and the word that you have sown into their life, that also grows. और जो सही समय में वो उनको आशीष मिलेंगे, And at the right time, that word will bring a blessing in their life. शैतान से विजय पाएंगे, They will win victories over the और wicked परमेश्वर का one. अभिषेक से वो और बढ़ेंगे। And they will grow in the anointing of God. तो आप ये देख लीजिए वो दोनों व्यक्ति के यही ने क्या गलती किया है, अपने छोटे बच्चे से लेके उनको परमेश्वर का भय नहीं दिया है। And we see that Eli did not instill inside of them the fear of God from their childhood. आप देख लीजिए सामुएल ने परमेश्वर को भाई मान के वही जगह में, वही मंदिर में बड़ा हो गया है। We see that Samuel, with the fear of God, he was growing up in that same temple. तो इसी कारण से परमेश्वर को बहुत गुस्सा हो गया है, And God was displeased and angry. और वो बता रहा है, वो दास को भेज के एली से जो बात कर रहा है, And God sent the man of God to minister to Samuel, to Eli that day. और verse 31, sorry 30 से पढ़ेंगे। Therefore the Lord God of Israel says, I said indeed that your house and the house of your father would walk before me forever. But now the Lord says, far be it from me, for those who honor me I will honor, and those who despise me shall be lightly esteemed. Behold, the days are coming that I will cut off your arm and the arm of your father's house, so that there will not be an old man in your house. इसलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा। हालेलुया। याद रखो,
परमेश्वर जो कहते हैं, अगर तुम्हारा दिन में तुम्हारे जीने के समय में तुम परमेश्वर का आदर करेंगे तो परमेश्वर तुम्हारा आदर करेंगे। In all your days, if you honor God, God will honor you. और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। अब बता रहे हैं, अगर तुम तुच्छ आने दो, तुम्हारे जीवन में भी परमेश्वर उस तरफ सोचेंगे। If you despise God, He will also lightly esteem you. He will not give you any ये importance. कैसे शुरू होता है? ये सडनली कुछ नहीं कर सकता है। And suddenly all these things do not take place. आपको छोटी उम्र से परमेश्वर का वचन को सिखाना पड़ेगा आपको बेटा Teach your बेटी को। children about the word of God from their young childhood. ये सही बात है। अगर आपके जीवन में अगर आज से अगर शुरू किया तो आपका जीवन बच जाएगा। And this is the right, true word. If you start and begin even today, surely God will deliver you. आपका संतान बच जाएगा। Your children will be delivered. अगर आप नहीं हो तो किस तरह एली का बेटे के ऊपर किस तरह परमेश्वर का श्राप आया है, उस तरह तुम्हारे जीवन में भी आ सकता But if है। you ignore the word of God, even as the sons of Eli were cursed, we see that such curses will come upon your वो children किस too. तरह दंड दे रहा है? वो तुम्हारा जीवन में कोई बुजुर्ग नहीं हो सकता, मतलब यंग एज में सब जन मर जाएगा करके। And God is speaking over their life, saying, in your father's house, there will be no one who will grow old. अब ये देख लीजिए, वो 33 में परमेश्वर किस तरह श्राप देते हैं, देख लीजिए, आप डर जाएगा। And you will see an enemy in my dwelling place, despite all the good which God does for Israel. And there shall not be an old man in your house forever. But any of your men whom I do not cut off from my altar shall consume your eyes and grieve your heart. And all the descendants of your house shall die in the flower of their age. मैं तेरे कुल के सब किसी से तो अपनी वेदी की सेवा न छीनूंगा, परंतु तो भी तेरी आंखें देखती रह जाएगी। तुम्हारे सेवक को मैं एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तुम्हारे जो तुम विश्वासी हो के तुम प्रार्थना करेंगे वो भी मैं एक्सेप्ट नहीं करेंगे। परंतु तो भी तेरी आंखें देखती रह जाएगी और तेरा मन शोकित होगा और तेरे घर की बढ़ती सब अपनी पूरी जवानी ही में मर मिटेंगे। अब देख लीजिए किस तरह परमेश्वर जो कर्ज दे रहा है। See the way in which God is actually laying down a curse upon this family. तो उसके बाद में क्या हो गया, ये देख लीजिए। Now this shall be a sign to you that will come upon your two sons, on Hophni and Phinehas. In one day they shall die, both of them. Then I will raise up for myself a faithful priest who shall do according to what is in my heart and in my mind. I will build him a sure house, and he shall walk before my anointed forever. और मेरी इस बात की चिन्ह वह विपत्ति होगी जो होफनी और फिनियास नामक तेरे दोनों पुत्रों पर पड़ेगी, अर्थात वे दोनों एक ही दिन मर जाएंगे और उन दोनों मर जाएंगे और उनके स्थान में हम दूसरा को अभिषेक करेंगे करके बता रहा है। And God is saying that in their place He's going to appoint a faithful और priest. और तुम्हारे जीवन में किस तरह तकलीफ होने वाला, वर्स 36 में जो लिखा है, 36 पढ़ेंगे। And it shall come to pass that everyone who is left in your house will come and bow down to him for a piece of silver and a morsel of bread, and say, please put me in one of the priestly positions that I may eat a piece of bread. मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहरूंगा, तो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा, और मैं उसका घर बसाऊंगा और स्थिर करूंगा। वह तेरे अभिषेक के आगे आगे सब दिन चला फिरा करेगा, और ऐसा होगा कि जो कोई तेरे घराने में बचा रहेगा वह उसी के पास जाकर एक छोटे से टुकड़े चांदी के या एक रोटी के लिए दंडवत करके कहेगा, याजक के किसी काम में मुझे लगा जिससे मुझे एक टुकड़ा रोटी मिले। अब देख लीजिए, जो याजक बोलो तो दुनिया में सबसे बड़ी आशीष है। You know, the blessing of being a priest is much greater in the world. वो इसी नहीं है, This post is not to be taken lightly. इसमें जो लिखा है, जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो याजक हो और सादा इंसान हो, उसी बारे में वो जो परमेश्वर जो उनको जो कहते हैं, अगर तुम इस तरह जो कर रहे हो, तुम्हारे खानदान में वो खाने के लिए वो तकलीफ होंगे उनको। And he's saying that when they live such lives, they will have even problem for a morsel of bread. क्या मतलब एक छोटी सी रोटी के लिए वो भीख मांगेंगे। And they're coming and they're begging for some morsel and piece of bread. ये देखिए, परमेश्वर अच्छे स्थान में रखा है, वो इंसान कहाँ जा रहा है। And God had actually given
the great position in the temple of God, but look at their position now. और बाद में हमसे याजक के लिए वो क्या करेंगे, हमको याजक भले तुम्हारे साथ काम करने के लिए मौका दे करके वो मांगेंगे. And they are coming and requesting, they'll be requesting, saying that please give me some priestly position that I may also work वो at क्या बोल रहे the हमको, आप तो सेवक में मुझे आप नीचे काम करेंगे, आपको सहायता करेंगे, मिनिस्ट्री में सपोर्ट करेंगे करके इस तरह वो बात And करेंगे. they're coming and begging, saying that please give me also some priestly position that I might also eat something. याद रखिएगा, कोई भी वो परमेश्वर के सबको एक ही नजर से देख रहा है. God is a God who looks at everybody equally. तो हमें परमेश्वर के भय मांगे, उनके सेवक करना है. And as we serve God, serve the Lord with fear and trembling. और उनको जो हर विश्वासी भाई बहन सब परमेश्वर को भय मान के जीना है. And all the believers also fear the Lord and live your lives. अगर इस तरफ आपको जीवन में बदलेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में आशीष हमेशा रखेंगे. When you change your life, turn from your wicked life, God will surely keep a blessing that will stay upon your life तो forever. इस तरफ जो परमेश्वर के दास के द्वारा एली से बात कर दिया, And we see that the man of God came and ministered to Eli the priest. तो उसके बाद में क्या बता रहा है, ये जो परमेश्वर ने सामुएल के साथ में दर्शन देता And है. after that we see that God came and revealed himself to Samuel. और सामुएल के साथ बात होने के बाद वो जो एली सामुएल से पूछता है, हे मेरे बेटे परमेश्वर तुम्हारे से क्या बात किया. And after God had spoken to Samuel, we see that Eli comes and asks Samuel, my son, tell me, what did God tell you? क्योंकि परमेश्वर ने सामुएल से बात किया है, एली का बेटे की मैं इस तरह दंड देने वाला करके परमेश्वर से बात किया है. And God spoke against the children of Eli, saying that in such a manner I'm going to punish them. और जो सामुएल डर गया था, मतलब कैसा मैं इनको बात करूं, कैसा इनको सुनाऊं, वो याजक है, उनके बेटे के बारे में मैं किस तरह बात करूं, वो डरता था. And we see that Samuel was fearful to speak the things that God spoke to him, because the children of Eli were also priests, and he was wondering how he's going to go and tell them. तो जो सामुएल से ये बता रहे, मेरे बेटे सच सच बताओ, तुम डरो मत, मुझे बताओ परमेश्वर तुम्हारे से क्या बात किया. And we see that Eli comes and tells him, my son, do not fear, you tell me whatever God has spoken to you. तो उसमें लिखा है वर्ष 13 में, chapter 3 verse 13. For I have told him that I will judge his house forever for the iniquity which he knows, because his sons made themselves wild and he did not restrain them. 13 वचन. क्योंकि मैं तो उसको यह कहकर जता चुका हूँ कि मैं उस अधर्म के कारण जिससे वह जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा. वो क्यों, अब देख लीजिए, तो एली के बता रहा है, वो अपने पुत्र के ऊपर जो इस तरफ श्राप आने वाले को जान के भी उनको कंट्रोल नहीं किया. And we see that he knew the iniquity of the children, but he did not restrain them. इसमें वेरी क्लियरली लिखा है, अपने बेटे को तुमने कंट्रोल नहीं किया, मतलब उनको तुम बराबर ये नहीं किया करके. And he's saying, the word of God says that he did not restrain them from their evil doings. तो उसी कारण एली को भी वो दंड आ गया है. And we see that because of that, even Eli was to be punished. ये पूरा पहला वचन में क्या लिखा था, एली ने अपने बेटे से बात किया, ये मेरे बेटे परमेश्वर को पसंद नहीं है, तुम रुको, इस तरह काम गलत नहीं करना करके. And we read earlier that Eli did speak to his son, saying that my sons, this is not right what you are doing. इसमें लिखा है जो उन्होंने अपने बेटे से कंट्रोल, मतलब उसको स्टॉप नहीं किया है. And here what we read that he did not restrain them. आज मेरे भाई मेरे बहन, अगर तुम्हारे परिवार में अगर इस तरह कुछ गलत करते तो आज तुम रुकाना जरूरी है. And my beloved brothers and sisters, if there is some evil or wild doings in your family, it's your duty to restrain them. अगर आप रुका नहीं है तो आपके ऊपर भी दंड आएगा. If you do not restrain them, God will punish you along with them. जो किस तरह जो एक याजक के घर के अंदर इस तरह पनिशमेंट जो दिया है परमेश्वर, क्यों विश्वासी के ऊपर पनिशमेंट नहीं देंगे If क्या? God can bring about such a punishment on the family of a priest, can God not actually punish even a believer? आपको यही पता होना चाहिए, वेरी क्लियरली लिखिए, जो मूसा के समय में अगर कोई भी इंसान पाप किया तो भी उनको कुछ परिहार बताया, मतलब इस तरह उसमें से मुक्ति होने के लिए क्या करना करके उन्होंने बताया था. And we see that when Moses gave the commandments of God, when the people sinned against God, God made an option for them to come and ask forgiveness and offer up the sacrifices for their sins. तो उसी वचन को परमेश्वर याद दिलाता है सामुएल को द्वारा एली को. क्या बता रहा है वर्ष 14 में, And therefore I have sworn to the house of Eli that the iniquity of Eli's house shall not be atoned,
for by sacrifice or offering forever. इस कारण मैंने एली के घराने के विषय यह शपथ खाई कि एली के घराने के अधर्म का प्रायश्चित न तो मेल बलि से कभी होगा और न अन्न बलि से। वो क्या बता रहे, देख लीजिए, कोई भी बलि देने दो, उसमें क्या लिखा, बलि देने से तुमको पाप क्षमा हो जाएंगे। लेकिन इधर जो लिखा, तुम कोई भी बलि दो, तो मेम बलि दो, न तो ऑफरिंग बलि दो, किसी से भी मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। We read that Moses, when he gave the commands, God said that he would forgive and their sins would be atoned for by their sacrifices and the offerings. But here God says that in Eli's house, that none of their offerings or their sacrifices will bring atonement for their sins. अब ये देख लीजिए, और एक वेरी इंटरेस्टिंग वर्स देख लेंगे, चैप्टर 4 फ्रॉम वर्स 4, 4 वाक्य 4 वचन। तब उन लोगों ने शीलो में बेचकर वहां से करूबों के ऊपर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा की वाचा का संदूक मंगा लिया, और परमेश्वर की वाचा के संदूक के साथ एली के दोनों पुत्र होफनी और फिनियास भी वहां थे। ये वाचा का संदूक, परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर के प्रेजेंस के सामने कौन बैठा है? और वो एली के जो पुत्र फिनियास और होफनी, दोनों जन बैठा था। And we see that the two sons, Hophni and Phinehas, they were the ones who were with the ark of the covenant of God. कोई भी वो परमेश्वर का आप बेटा बेटी अगर हो गया, तो आपको, आप ये समझना है, आप बहुत आशीष पाला व्यक्ति करके समझना है। You, if you are children of God, sons and daughters of God, you must know how blessed you are. और वो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। And you have to be very much careful about your life. वो क्या लिखा है देख लीजिए, वो दोनों बाहर में बैठा है, और वर्स 5 में, तब यहोवा की वाचा का संदूक छावनी में पहुंचा, तब सारे इजराइल इतने बल से ललकार उठे कि भूमि गुंज गई। क्योंकि वाचा का संदूक लेके आने, सब जन खुशी से, आनंद से बहुत चिल्लम चिल्ली करता था। And we see that the people of Israel rejoiced and shouted so loudly, and the whole earth shook because the ark of the Lord had come in their midst. आप ये समझते, इस तरफ सब जन खुशी से गीत गाने के समय में जो बलिष्ठ थे, लोग क्या हो गया था? And when these people were shouting praises because of the confidence of the ark of the covenant, what happened with the camp of the Philistines is, और वो लोग डर गया था। इसमें वचन में कंटिन्यू आप बाद में पढ़ेंगे, वो लोग डर गया था। अभी मतलब जो ये परमेश्वर जो है, मिस्र देश से जो आने के टाइम में जो फारओन का, जो मिस्र देश वाले के सबको खत्म किया है, सबको बीमारी दिया है, सबको उन्होंने खत्म किया करके वो सब जन जान गया था। and we see that the Philistines knew how the Lord had delivered the Israelites from the Egyptians, and so when they heard the shout of the people of Israel, they were fearful that this is the same God who fought for them against the आप ये Egyptians. देख लीजिए, जो बादशाह का संदूक लेके आने के टाइम में, क्योंकि सबको ये भी पता है, उसी के साथ में जाने टाइम ताकत आता है, उसके साथ में सामर्थ आता है, मतलब अभिषेक आता है करके सबको पता है। And the people of Israel knew, and the others also knew, that the presence of God, there was power, there was great might in the presence of God, and so they knew that when the ark of the covenant came in, that something is going to happen. अब ये देख लीजिए, जो इसराइल लोग क्या समझता था, अभी अब जा रहा है, इसके उल्टा के लेके जाएंगे करके आनंद से, खुशी से फिलिस्तीन के खिलाफ भी आ रहा था। And we see that the Israelites had the ark of the covenant of God, and they were joyfully, with gladness and boldness, they went to fight against the और Philistines. जो फिलिस्तीन लोग इनके खिलाफ लड़ाई शुरू किया And है, there was war between both of them. और जो वचन लिखा है वर्ष 11 पढ़ेंगे 11। Also, the ark of God was. So the Philistines fought, and Israel was defeated, and every man fled to his tent. There was a very great slaughter, and there fell of Israel 30,000 foot soldiers. Also, the ark of God was captured, and the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, died. तब फिलिस्ती लड़ाई के मैदान में टूट पड़े और इजराइल हार कर अपने अपने डेरे को भागने लगे, और ऐसा अत्यंत संहार हुआ कि 30,000 इजरायली पैदल खेत आए। अब देख लीजिए, 30,000 इसराइल को मर गया है। And we see that 30,000 foot soldiers, they died that day. कैसे पॉसिबल है? How was it possible? परमेश्वर के संदूक साथ में है, The Lord's ark was with them. परमेश्वर के याजक साथ में है, The priests were with them. तो क्यों परमेश्वर अनुमति किया है? But why did God allow such a क्योंकि failure? परमेश्वर के खिलाफ काम करेंगे तो परमेश्वर तुम्हें छोड़ देगा। Because when you do
things displeasing to God and work against God, God will let go. ये ओपनी फिनिहास कहाँ बैठा था? परमेश्वर के संदूक के सामने बैठा We था। see that Hophni and Phinehas were the ones who were carrying the Ark of the Covenant. उनको ये दोनों यही पता है परमेश्वर के संदूक के बगल में बैठे से हमें प्रोटेक्शन मिलेंगे करके। And they were assuming that because they were with the Ark of the Covenant that they have a divine protection. आज बहुत जन क्या कभी-कभी अपने जीवन में डर गया तो कभी-कभी परमेश्वर का वचन को लेके साइड में लेके सोता है। Many people, when they are fearful, they're scared about something, they keep the Bible near them and they sleep. उनको मन में एक ताकत आता है परमेश्वर वचन में सामर्थ्य करके वो अपने सामने रख के सो जाता है। And they have some belief and faith that there is power in the word of God, and so they keep it near them and they sleep. उससे सामर्थ नहीं आता है। It's the power just does not come by keeping it. परमेश्वर उनको बचाए जो बाइबल को परमेश्वर के वचन को संभालेंगे। The Lord is protecting those who actually have the word of God inside of लेकिन them. वो जो परमेश्वर का वचन तुम्हें संभालना है तो क्या करना है? परमेश्वर के वचन को तुम्हारा अंदर लेना है। If you want the word of God to work and protect you and preserve you, you have to have the word inside of you. परमेश्वर के वचन को सुनना है, Hear the word of God उसका आगे पालन करना है। and obey the word of God. देख लीजिए दोनों व्यक्ति उधर ही बैठा था लेकिन वो दोनों मर गया। And we see that both these priests who were with the Ark of the Covenant, तो they both died. लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वचन 11 में थोड़े पढ़ेंगे। Then a man of Benjamin ran from the battle line the same day and came to Shiloh with his clothes torn and dirt on his head. और वो जो तब उसी दिन एक बिन्यामीनी मनुष्य सेना में से दौड़कर अपने वस्त्र फाड़े और सिर पर मिट्टी डाले हुए शीलो पहुंचा। क्योंकि वो जो परमेश्वर का संदूक भी पकड़ लिया करके। And we see that in verse 11 it says, Hophni Phinehas died and the Ark of God was also और captured. जो लड़ाई में जो था जो जवान दौड़ के पीछे दौड़ के आ रहा है एली के पास आ रहा है। And we see that the young people, they were also running. There was a man who ran to Eli. और एली सामने जो बैठा है verse 13। Now when he came, there was Eli sitting on a seat by the wayside watching, for his heart was trembling for the ark of God. And when the man came into the city and told it, all the city cried out. When Eli heard the noise of the outcry, he said, "What does the sound of this tumult mean?" And the man came quickly and told Eli. तब वह पहुंचा उस समय एली जिसका मन परमेश्वर के संदूक की चिंता से थरथरा रहा था। आप देख लीजिए ये वर्ष मेरे दिल में बहुत मुझे लग गया था। You know, this word really touched me. वो क्योंकि वो जो उसका परमेश्वर के संदूक के बारे में वो सोचते रहता था कि एली ने अभी क्या होगा, लड़ाई बहुत चल रहा है, अभी जो पता नहीं क्या होगा करके वो बहुत याद करता था परमेश्वर। And we see that Eli was there sitting and trembling concerning the ark of God. His heart was trembling, thinking about what has happened and what is going on in the battlefield. एली जिसका मन परमेश्वर के संदूक की चिंता से थरथरा रहा था। अब देख लीजिए, तो आपको ये याद रहना चाहिए परमेश्वर का वचन को कभी भी कुछ भी चीजों से नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। And you must see to it that you preserve the word of God inside of you. आपको मैं बार बार यही बताना चाहता हूँ, सबसे पहले परमेश्वर का पहला स्थान दो। Give God the first place in your life. और दूसरा जो है परमेश्वर का वचन को पहला सेकंड स्थान दो। Give the word of God priority in your life. आपको अगर परमेश्वर का वचन का आप इम्पोर्टेंट नहीं करेंगे तो आपका जीवन नाश हो जाएगा। And if you do not give God the word of God priority, you will be on the path to destruction. उसका मन लग रहा था, इसलिए परमेश्वर ने उनको मदद किया है। And we see that his heart was trembling for the ark of God. जो बता रहा है वो वर्ष 14 में। चिल्लाने का शब्द सुनकर एली ने पूछा, ऐसे हुल्लड़ और हाहाकार मचने का क्या कारण है? और उस मनुष्य ने झट जाकर एली को पूरा हाल सुनाया। और कंटिन्यू करेंगे। Eli was 90 years old. Eli was 98 years old, and his eyes were so dim that he could not see. Then the man said to Eli, "I am he who came from the battle, and I fled today from the battle line." And he said, "What happened, my son?" So the messenger answered and said, "Israel has fled before the Philistines, and there has been a great slaughter among the people. Also, your two sons Hophni and Phinehas are dead, and the ark of God has been captured." एली तो 98 वर्ष का था और उसकी आंखें धुंधली पड़ गई थी।
और उसे कुछ सूझता न था। उस समय ने एली से कहा, उस मनुष्य ने एली से कहा, मैं वही हूँ जो सेना में से आया हूँ और मैं सेना से आज ही भागकर आया हूँ। वह बोला, हे मेरे बेटे, क्या समाचार है? उस समाचार देने वाले ने उत्तर दिया, इजरायली पलिश्तियों के सामने से भाग गए और लोगों का बड़ा भयानक संहार भी हुआ है और तेरे दोनों पुत्र होफनी और फिनियास भी मारे गए और परमेश्वर का संदूक भी छीन लिया गया है। और इस तरह जो खबर सुन के, क्योंकि वो पहला वचन में हम क्या लिखा है, परमेश्वर का जो वाचा का संदूक के बारे में वो उसका हृदय में बहुत तकलीफ हो रहा था। And we see that his heart was trembling concerning the ark of God. और अभी जो बता रहे खबर मिला है, परमेश्वर ने संदूक भी पकड़ लिया और आपका दोनों बेटा भी मर गया है। And when he hears the news that Hophni and Phinehas died and the ark of God has been captured. एक चीज को प्लीज वेरी केयरफुल आप देख लीजिए, वो अपने दोनों बेटा मर गया करके वो ज्यादा चिंता नहीं कर रहा है। वो वर्ष 18 में जो लिखा है, देख लीजिए, जो ही उसने परमेश्वर के संदूक का नाम लिया, त्यों ही एली फाटक के पास कुर्सी पर से पछाड़ कर गिर पड़ा और बूढ़ा और भारी होने के कारण उसकी गर्दन टूट गई और वह मर गया। उसने तो इजरायली का न्याय 40 वर्ष तक किया था। आप ये देख लीजिए, ये जो एली जो है, आखिर जो खबर मिल रहा है तुम्हारे दोनों बेटा मर गया करके, लेकिन उनको पता है परमेश्वर उनको मारने वाला है, क्योंकि ये सुनता नहीं है। लेकिन उनका चिंता यही है, परमेश्वर को जो वाचा का जो संदूक है वो पकड़ लिया करके, वो सुन के वो इस तरह तो गिर गया है। And we see that when Hophni and Phinehas has died, when this news reached his ears, it did not affect him because he knew God was going to punish them. But when he heard about the ark of God being captured, immediately he fell back because of the shock and he fell and died. मेरे प्रिय, मैं वापस आखिरी बार एक बार बता रहा हूँ, परमेश्वर का वचन के ऊपर प्रेम करो। My beloved, love the word of God, treasure the word of God. क्योंकि जो परमेश्वर का वर्ड क्या है, And what is this word that we are reading? योहन जॉन चैप्टर 1 में जो 1 से जो लिखा है, नया नियम में जो लिखा है, परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है। And we read in John chapter 1 verse 1 that this word is Jesus himself. और वो यीशु मसीह है। And this word is Jesus. वो मसीहा है। It is the Messiah Jesus. आप जेनेसिस में, उत्पत्ति में आप पढ़ने के समय में जो लिखा है, परमेश्वर ने अपने एक एक शब्द में से सब चीज बना दिया And we है। read in the book of Genesis that by his word God created everything. और जो एक एक शब्द इसका अंदर है। And every word is recorded here in the तो Bible. मतलब दुनिया बना दिया, ये सब चीजों को बना दिया ये वचन के द्वारा। And God has created everything in the whole world by his word. तो अगर आपके जीवन में परमेश्वर का वचन कार्य नहीं करेगा, And will not the word of God work in your life too? एवरीथिंग पॉसिबल। सब कुछ संभव है। सब एवरीथिंग, बात आप बोलो, परमेश्वर के वचन से सब कुछ पॉसिबल है। You believe it and say that all things are possible by the word of God. Declare yourself, everything, सब कुछ पॉसिबल है परमेश्वर के वचन में। And all things are possible through the word of God. और जो इसी तरफ से वो जो परमेश्वर का वाचा का संदूक जो पकड़ लिया, वो मर गया है, काफी दुख हो के मर गया हुआ है। And we see that Eli died that day when he heard the news about the ark of God, and with that sorrow he died. और जो उसके बाद में कंटिन्यू करें 19 में, Now his daughter-in-law, Phinehas's wife, was with child, due to be delivered. And when she heard the news that the ark of God was captured, and that her father-in-law and her husband were dead, she bowed herself and gave birth, for her labor pains came upon her. And about the time of her death, the women who stood by said to her, Do not fear, for you have borne a son. But she did not answer, nor did she regard it. Then she named the child Ichabod, saying, The glory has departed from Israel. आप ये समझ लीजिए, जो 21 में जो लिखा है, पढ़ेंगे, जो परमेश्वर के संदूक को जो पकड़ लिया, परमेश्वर के संदूक के छीन ले जाने और अपने ससुर और पिता के कारण उसने यह कहकर उस बालक का नाम इकबोद रखा, इस्राएल में से महिमा उठ गई है। इस्राएल का महिमा उठ गई। And the glory of God has departed from Israel. याद रखो, परमेश्वर का महिमा है, परमेश्वर का प्रशंसा अपना कुछ हमेशा चाहिए। And you need
the presence of God and the glory of God to dwell with you always. अगर आप परमेश्वर से दूर जाने के समय में परमेश्वर का महिमा तुम्हें छोड़ के जाएगा। And when you run away from God, you run far away from God, the glory of God, it departs from ये you. देख लीजिए पूरा परिवार का ऊपर से वो चला गया है। And we see that the glory departed from this whole family. और वो जो स्त्री है काफी दुखी में वो अपने बच्चे का नाम डाल दिया And है। we see that with that much pain and sorrow, she names her child Ichabod. तो ये जो कहानी, ये कहानी नहीं, सही बात परमेश्वर अपने सिखाता है। And the Lord is teaching and ministering to us from this incident. तो अगर परमेश्वर तुम्हारे से हर चीजों को बता रहा है, मेरा बेटा मेरा बेटी तुम इस तरफ जीना करके तुमको संगति देता है, तुमको गाइडेंस देता है, तुमको हेल्प करता है। And God Himself, He ministers to us, He guides us, He counsels us, saying, "My son, my daughter, this is what you have to do or not do." आप बोलेंगे परमेश्वर कैसा आपसे बात करेंगे? And you might question, in what way does God speak to परमेश्वर us? अपने दास के द्वारा, अपने संदेश के द्वारा आप तुम्हारे से बात करेंगे। And God will surely minister to you from His servants. अब यही याद रखना है, मेरा परमेश्वर मेरे से बात किया करके। And you must remember, God has spoken to me. अगर आप सचमुच परमेश्वर से प्रेम करते हो तो जो हर पल कलीसिया आने के समय में, नहीं तो जो परमेश्वर का वचन सुनने के समय में आपका मन में यही होना चाहिए, ये मेरे परमेश्वर मेरे लिए बात करो, परमेश्वर मेरे लिए आप काम करो करके परमेश्वर करके इस तरफ आप प्रार्थना में लगाते रहना है। You must have that heart and the desire, and must pray whenever you come to church or when you're hearing the word of God. Lord, you speak to me, you minister to me. अगर आप पूरे मन से परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तो तुम्हारे जीवन में परमेश्वर वचन कार्य करेगा। And when you hear the word of God attentively, the word of God will minister to you. अब ये देख लीजिए, और एक व्यक्ति के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये देख लीजिए, जो एक छोटे से जो दाऊद राजा, सबको आप पता है परमेश्वर का प्रेम का दास है। And we see and we know about David, the king who was beloved of God. और जो उन्होंने दाऊद से बहुत प्रेम करता था, और दाऊद परमेश्वर के लिए जो पाप करने के बाद में भी वो अपने परमेश्वर से क्षमा मांगे परमेश्वर के लिए जी रहा था। And we see that David was beloved of God. He loved the Lord. God loved him. And even after he fell into transgression, after he repented, God forgave him. और जो उनका जो बेटा है सोलोमन, And we see that he had a son named Solomon. और सोलोमन के सामने परमेश्वर ने 2-3 उसने दर्शन में बताया, हे मेरे बेटे, तुम इस तरह गलत काम नहीं करना, मेरा छोड़ के तुम किसी को सुधी आनंद नहीं करना करके बता रहा था। And we see that God revealed and spoke to Solomon, saying that, my son, do not do this thing that you are doing, that you are worshipping other gods apart from me. तो हम वचन पढ़ेंगे 1 Kings chapter 11 verse 11। अब देख लीजिए, उधर एली से बात किया परमेश्वर, एली के साथ परमेश्वर ने बात किया। इधर जो क्या बता रहा है हम देख लेंगे। 1 Kings chapter 11 verse 11। Therefore the Lord said to Solomon, because you have done this and have not kept my covenant and my statutes, which I have commanded you, I will surely tear the kingdom away from you and give it to your servant. इसलिए यहोवा ने सोलोमन से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंधाई हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीनकर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। आप देख लीजिए, जो सोलोमन ने परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं किया, उसी कारण ने परमेश्वर ने राज्य को दूसरे को दे दिया। And we see that because Solomon disobeyed the word of God, God snatched the kingdom away from him and gave part of it to his servant. लेकिन वो दाऊद का कारण दूसरा वचन जो लिखा है verse 12। Nevertheless, I will not do it in your days, for the sake of your father David. I will tear it out of the hand of your son. However, I will not tear away the whole kingdom. I will give one tribe to your son for the sake of my servant David, for the sake of Jerusalem, which I have chosen. तो भी तेरे पिता दाऊद के कारण तेरे दिनों में तो ऐसा न करूंगा, परंतु तेरे पुत्र के हाथ से राज्य छीन लूंगा। फिर भी मैं पूर्ण राज्य तो न छीन लूंगा, परंतु अपने दास दाऊद के कारण और अपने चुने हुए यरूशलेम के कारण मैं तेरे पुत्र के हाथ में एक गोत्र छोड़ दूंगा। अब ये देख लीजिए, बार बार बता रहे दाऊद का कारण। And God is speaking and
mentioning about David again and again. अब ये समझ नहीं मतलब क्यों परमेश्वर को दाऊद का नाम पुकार रहा है? And why is God mentioning David so many times? दाऊद परमेश्वर का जो मनपसंद काम किया है। Because David was somebody who was after his own heart. अब याद रखना चाहिए वो परमेश्वर स्वयं बता रहे उनके नाम से पुकारता है, तुम्हारा पिता दाऊद का नाम से। And God is mentioning and speaking about David, your father David. तुम्हारे पिता का दाऊद का कारण से मैं तुम्हें आशीष देता And हूँ। he clearly says that it's because of your father David that I will do this for you. उधर एली के पुत्र को तुरंत खत्म कर दिया। And there we see that God destroyed the children of Eli immediately. ये भी सोलोमन भी बड़ा गलती किया, पाप किया And we है। see that even Solomon transgressed against God. जो परमेश्वर को जो ना पसंद है काम कंटिन्यूअसली करते रहता था। And we see that he continually after the warnings also was sinning against और God. वो तो ओपनी फिनिगास के साथ में परमेश्वर ने मुलाकात नहीं हुआ, बात नहीं की। And we see that Hophni and Phinehas did not have an interaction or encounter with अब God. देखिए जो डिफरेंस क्या है वो दूसरे के द्वारा सुनाया, अपने पिता बता रहा है वो सुना नहीं। यहाँ जो सोलोमन को परमेश्वर स्वयं उसके दर्शन से बता रहा है, तुम्हारा पिता का सम्मान तुम नहीं लेंगे तो तुम्हें मैं निकाल देंगे करके। And we see that Hophni and Phinehas did not have any direct encounter with God. Their father told them not to sin. But here we see that Solomon, God himself came in a vision and told him that he is not to sin. और एक व्यक्ति के बारे में परमेश्वर जो बता रहा है, अब्राहम का नाम से कभी कभी बहुत बुरा आप देखेंगे तो उनका नाम से बोलते मैं अब्राहम को जो दिया जो वाचा के द्वारा तुम्हें आशीष दूंगा करके। And we see that one more name that God always takes is Abraham, and he says that because I made a covenant with Abraham, I do these things. हालेलुया। देख लीजिए अब्राहम मरने के बाद में भी अब्राहम के नाम से परमेश्वर पुकारता है। And we see that even after Abraham has died, God mentions his name and says, because of Abraham. वो बता रहा मतलब मेरे अब्राहम And he says, because of my मतलब servant आप देख लीजिए Abraham. जो किस तरह जो परमेश्वर का आज्ञा पालन होने के बाद वो हम परमेश्वर का हो जाता है। And when we live lives obeying the commands of God, we belong and we become His. तो अब्राहम का आशीष किस तरह देता है? तुम्हारे संतान को मतलब जो उनको पीढ़ी तक मैं आशीष दूंगा करके। And God promised Abraham that I will bless you and the descendants after you. आपको तो पता है सब कुछ जो परमेश्वर ने आपके साथ बात किया है। And surely God has spoken to us through His word many times. यहाँ क्या हो गया है वर्स 14 में 14 में Now the Lord raised up an adversary against Solomon, Hadad the Edomite. He was a descendant of the king in Edom. जो परमेश्वर ने सोलोमन के खिलाफ जो एक दुश्मन को उसने खड़ा किया तब है। यहोवा ने एदोमी हदद को जो एदोमी राजवंश का था सुलेमान का शत्रु बना दिया। समझ लीजिए ये वो शत्रु स्वयं नहीं आया, परमेश्वर ने उनको शत्रु बनाया। And God says God raised अगर an परमेश्वर के adversary. खिलाफ तुम कभी काम करेंगे तो परमेश्वर तुम्हारे खिलाफ काम करेंगे। When you work against God, God starts working against you. उन्होंने क्या बताया पहला वचन में जो लिखा है, तुम अगर मेरा ऑनर करेंगे तो मैं तुम्हें ऑनर करूंगा। And God already said, we read the word that when you honor me, I will honor you. हालेलुया। Hallelujah. हम हमेशा यही बता जाता हूँ, मेरा प्रचार में शुरू करने से पहले मुझे परमेश्वर ने यही वचन दिया, अगर तुम परमेश्वर का एक कदम उठाएंगे तो परमेश्वर तुम्हारे 2 कदम उठा के तुम्हारे सामने आएगा। When you take one step towards God, God will Himself take 2 steps towards you. अगर इस तरफ जो परमेश्वर को आप पहले स्थान दो, Give priority to the Lord. कारण यही है जो इस तरफ तुम्हारे खानदान में भी हो, तुम्हारे परिवार में जो भी श्राप होंगे वो यीशु ने उठा लिया है। And remember that God has taken upon, Jesus has taken upon Himself whatever curse may be upon your family. उसके लिए उसने क्या किया है हम पढ़ेंगे गलातियों चैप्टर 3 वर्स 13। Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us, for it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। वो जो पुराना नियम में पुराने लोग यही करता था, मतलब जो कोई भी घाट पे जो लगता था वो श्रापित करके। And all those who were hanged on a tree, they were accursed. तो
यीशु ने क्या गलत किया है? What sin did Jesus do? यीशु ने कुछ गलत नहीं किया है। Jesus never sinned. आप याद रखेंगे, अगर विश्वासी हो अविश्वासी हो, यीशु मसीह ने कुछ पाप नहीं किया है। Whether you're a believer or an unbeliever, know this, that Jesus never sinned. वो सबके सामने पूछ रहा था, मेरा बस कुछ पाप है तो बताओ। कोई भी बताए नहीं है, क्योंकि वो पाप नहीं किया है। There was no sin inside of him and no one could find fault in him. जो पवित्र जीवन बिता रहा था, He was living a holy तो life. उसने ये क्या किया? अपनी पापों को, अपनी श्रापत को, आज परमेश्वर से कहते हैं, तुम्हारा जीवन में, तुम्हारा परिवार में जो भी श्रापत है, अगर तुम यीशु मसीह के विश्वास करके यीशु मसीह का आज्ञा पालन करें तो तुम्हारा हर श्रापत को वो उठा लेंगे। And even today, if your family is accursed or you feel that there is some curse upon your life, even today the word of God says that Jesus took upon himself all your curses. आज आप मेरे तरफ से बहुत जन हमारे पास प्रार्थना के लिए जो मांग रहा है, लेकिन अपने परिवार में इस तरह जो प्रॉब्लम हो रहा है, कंटिन्यूस हो रहा करके, अलग अलग प्रॉब्लम हो रहा करके, अलग अलग समस्या है करके बता रहा है। A lot of people, they ask and they say that we are going through so many different kinds of problems and वो issues. बहुत स्वयं बता रहा, हमारा परिवार में श्रापत हो चुका है। And they themselves confess and say that their family is accursed. इस तरफ काम को देखे जो हर श्रापत को निकालने के लिए परमेश्वर ने अपने लहू देके हम सबको पर प्रेम करके अपने पापों को निकाल के पवित्र बनाया। And Jesus is the one who took upon himself all our curses and he shed his blood for us and he has saved and redeemed us अगर from तुम sin. परमेश्वर को स्वीकार करो, Even today, accept the Lord जो भी Jesus. श्राप तुम्हारे जीवन में होंगे, तुम्हारे परिवार में होंगे, परमेश्वर उसको निकाल देंगे। And even if you believe in the Lord Jesus, even today, whatever curse is upon you or your family, God will take it upon himself. अपने श्रापों को उठा लिया करके जो बता It रहा है। says he's already taken it on the cross. तो अगर आपका जीवन में, आपका परिवार में जो भी प्रॉब्लम रहता है, श्राप रहता है, आपसे नहीं तो और कोई भी इंसान से उसके निकाल नहीं The सकता। problems and the difficulty that you go through, no mankind can save you, no man can take it upon themselves, but only he's the one. परमेश्वर के पास आ जाओ, Come to the Lord Jesus. यीशु के पास आ जाओ। Come to the Lord वो बता Jesus. रहे, ये मेरे बेटे, ये मेरे बेटी, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम देंगे। And he says, all those who are heavy laden, you come to me, I will give you rest. तुम्हारा आंसू को परमेश्वर के सामने देओ, You come and pour out your tears to उनको God. पुकारो, Call to him. उनको बोलो, मेरे प्रभु, तुम्हारा बिना और कोई है ही नहीं है मुझे बचाने Call वाला upon है। him and tell him that, Lord, there is nobody else who can redeem me but you. जो तुम्हारे जीवन में कंटिन्यूअसली जो आता है प्रॉब्लम, सब परमेश्वर आज का निकालने की तैयार And है। whatever that you're facing continually again and again, all these problems, even today, God will approve. आज परमेश्वर आने वाला करके सबको बता रहा हूँ, And we say that Jesus is coming soon. और वो आने से पहले हमें तैयारी रहना And है। let's prepare ourselves. अगर वो आने से पहले हमारे से क्या क्या करना है वो हमें करना जरूरी है। And whatever we can do by ourselves, we need to do it before he तो comes. आज तुम्हारे जीवन में जो श्राप है, जो हर श्राप को तुम्हारे परिवार से परमेश्वर निकालने की तैयार है। And even today, God is willing to take away every curse that is upon you or your family. मेरे साथ विश्वास के साथ प्रार्थना करें, सब जन खड़ा हो जाएंगे। And even today, pray along with me with faith. हालेलुया। प्रभु हालेलुया। परमेश्वर आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। Lord, even this day we thank you, Lord. आज आपने जो बात किया है उसी आपको वचन के लिए हम धन्यवाद देते Even हैं। today you have spoken to us and we thank you for your word. आपने हमारे ऊपर इतना प्रेम किया प्रभु, हमारे साथ हर श्रापत को आपने उठा लिया, हमें आजादी दे दिया है। And thank you, Lord, that you love us so much that you already took upon yourself all our curses. आज जो मेरे सामने जो देख रहा है, जो सुन रहे भाई बहन के लिए प्रार्थना करता है, Lord, even today we pray for all those who are watching us, our brothers and sisters. वो जन रोके बैठा है अपने जीवन में क्या करूं क्या न करूं करके, कुछ रास्ता मालूम नहीं करके। A lot of people are in tears thinking about what is the way or path out of all these things. जो काफी श्रापों से परिवार का पापों के कारण बहुत जन रो रहा है प्रभु, दर्द ले लिया प्रभु। Lord, lot of people are suffering because of the sins in their family and they are accursed. और वो दंड दे रहा है, कंटिन्यूसली दंड मिला And है। they are having the punishment upon them now. आपने दया करके कृपा करके सबको क्षमा कर लीजिए। Father, we pray you'll forgive them even today. Have some mercy. आपका पवित्र लहू के सबको ऊपर डाल दीजिए। Lord, sprinkle your precious blood upon them. इनके खिलाफ जो आपको ऊपर जो विश्वास के साथ जो आ रहा है, अगर आपको जो मांग रहा है, इनके जीवन में कार्य कर लीजिए Lord, all प्रभु। those who are calling upon you with faith, we pray even today you'll work in their life. और जो किस तरफ से आपने आशीष जो देने वाले परमेश्वर है, आज
आशीष दीजिए प्रभु। Lord, you are a God who blesses, and we pray that even today that you stretch forth and you'll bless them. नया शांति दीजिए, Give them a new peace. परिवार में समाधान दीजिए। Give them peace in their जो families. परिवार के अंदर जो भी कमी कटी है, हर कमी कटी को निकाल के आशीषों से बदल All दीजिए। the lacks that is in the family, we pray that it will be uprooted and you will give them blessings and abundance. हर घर के अंदर आपका प्रेम, एक दूसरे से प्रेम करके जीने के लिए मन दीजिए We प्रभु। pray that every house will have your love and that they will love one another. तो आपका महिमा उन सबको पर आने दो। We pray your glory will descend आपको upon them. ऊपर आदर करने के लिए मन दीजिए। Give them a heart to honor you. आपका वचन को ऊपर आदर करने के लिए मन Give दीजिए। them a heart to honor your word. आपका वचन को द्वारा चलने के लिए मन दीजिए। Give them a heart to walk according to your आपने हमारा word. प्रार्थना सुन लिया, इसलिए हम धन्यवाद We देते thank हैं। you that you have heard our prayer. प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र नाम से सुन और कबूल करो हमारे जीवित स्वर्ग पिता। In the name of Jesus, we humbly pray. Accept our prayer. Amen. आमेन। Amen. प्रभु तुम्हारा प्रार्थना सुन लिया है। The Lord has heard your prayer. तुमने जो मांगा नहीं, लेकिन वो परमेश्वर तुम्हारे लिए देने की तैयार हो गया And है। even if you have not asked, when God is willing to give to उनको you. विश्वास करो, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बच्चों, My beloved brothers and sisters, believe in the Lord Jesus. तुम्हारे जीवन में प्रभु आशीष देने वाला And परमेश्वर God है। is the one who will bless you in your उनको life. कभी छोड़ो मत। Never let go of Him. उनका प्रशंसा को हमेशा पकड़ के रहना है। Hold on to His presence at all times. वो तुम्हारे जीवन में काम करेंगे। And His word will start working in your जाने life. से आने से हर क्षेत्र में तुम्हारे साथ परमेश्वर रहेंगे। And God will be with you in your going out and your coming in. आमेन। Amen. God bless you। God bless you. आशीष की प्रार्थना मेरे पीछे दोहराइए। तू मुझे सचमुच आशीष देता, तू मुझे सचमुच आशीष देता, मेरा देश बढ़ाता, मेरा देश बढ़ाता, तेरा हाथ मेरे साथ रहता, मेरा हाथ मेरे साथ रहता, तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता कि मैं इससे पीड़ित न रहूं। मैं इससे पीड़ित न रहूं। आमेन। आशीष लेंगे। पापों से, श्रापों से बचाने वाला प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह संसार के ऊपर इतना जो प्रेम करके अपने एक ही लौटा पुत्र को जो दे दिया है, वो पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा का सौभाग्यता और अभिषेक हम सबके साथ हमेशा हमेशा बने रहे। आमेन। 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 हालेलुया। 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 प्रभु आपको आशीष दिया है और आपको जीवन में चंगाई कर दिया है। And even today the Lord has blessed you. He has healed you. आप हमें लिखिए, हमें बताइए प्रभु को आपके जीवन में परमेश्वर किस तरह में जो कार्य किया है। Write to us and tell us also what great things God is doing in your हम life. सब जन मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। And together we will give glory to अभी जो God. पिछले हफ्ते से काफी बहुत जन फोन करके बताया था हमारे परमेश्वर ने इस तरह हमारे जीवन में चंगाई किया A करके। lot of people have called up and they have testified about the great things and healings that God has और वही given them. परमेश्वर आपके जीवन में भी कार्य करने शुरू कर दिया That है। same God has begun a good work in your life. God bless you। God bless you. आप सबको परमेश्वर आशीष करे। आज का दिन भी जैसे जैसे हम इकट्ठा आए हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को, उन्होंने हमसे बात किया। आमेन। कलीसिया के हर एक एक्टिविटीज में रिक्वेस्ट करते हैं सब लोग उसमें उत्साह के साथ जुड़े रहे। हालेलुया। फेसबुक में जो हमारा पेज है द हार्ट ऑफ क्राइस्ट चर्च, उसको आप लाइक कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल जो हार्ट ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज है, उसको सब्सक्राइब करके मिनिस्ट्री के हर एक अपडेट्स में आप फॉलो अप कर सकते हैं। आमेन। आने वाले दिनों में महान कार्य, नए नए द्वार परमेश्वर हमारे बीच में खोलेंगे। जल्द एक दूसरे को मिलकर प्रभु की महिमा करने के लिए परमेश्वर मौका देंगे। उसके लिए हम उत्साह के साथ प्रार्थना करते रहेंगे। आज का दिन भी प्रभु हम सबको आशीष करे और आने वाले हफ्ते हम सब के लिए एक आशीष का हफ्ता बने। गॉड ब्लेस यू ऑल। मे वी हैव अ ब्लेस्ड डे टुडे एंड अ ब्लेस्ड वीक अहेड। गॉड ब्लेस यू ऑल।